right away with our second lecture of engineering management science. और आज हम थोड़ा सा converge करेंगे and towards some tools and techniques regarding the use of engineering management as a science. So over here we welcome our online guest, Mr. Babar. Babar, say hello to everybody. Babar. Hello to everyone. Okay. Hello, welcome. So we welcome you on board and we hope कि जब तक 5 बजे आपकी लाइट होती है, so you are with us until 5 o'clock. And then okay, we have our second guest as well, Mr. Ayaz is there as well, so उनको भी आप adjust करें. So we have two online guests, Mr. Ayaz, and he has grown a beard, so क्या बात है. So Sir Ayaz को भी आप online कर लें. Accept कर लिया उनका? Okay. जी Sir Ayaz, can you hear us? Assalamualaikum sir, how are you? ठीक हैं? Okay sir, we are starting. Welcome to the class. We have two online guests, Mr. Ayaz और आपके साथ Mr. Babar भी हैं. So both of you welcome to the class. और अब हम शुरू कर रहे हैं. We are starting the engineering management science lecture. Okay, so this is lecture number 2. And today we'll be discussing some things about optimization and LP or linear programming. I hope that you have watched my video of supply chain, but many people have faced some problems as well. मेरा ख्याल है कि it was something to do with YouTube or something else, क्योंकि otherwise हमारे पास we have the videos, हम उनको भेज भी देंगे हाँ साइट में, तो I hope कि उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा. बहरहाल, सो विल स्टार्ट विद द प्रीमाइज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड विद लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन in the business environments or engineering management environments. So I'll not going to be going into hardcore mathematics or उसका तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा उसको रखूँगा और आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रही है और कैसे यूज़ आप कर सकते हैं. अच्छा, फर्दर मोर we'll be start. There are 2 or 3 announcements we should note and you should record as well. First is कि आज से ही हम टोरा जो सॉफ्टवेयर उसको शुरू कर रहे हैं. So वो सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी रख दिया है. It is on the portal as well, so you can download that and you can run the exe files. और वो सॉफ्टवेयर टोरा जो है ऑपरेशन रिसर्च का सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप यूज़ करना शुरू कर दें. And I am also talking to Mr. Ayaz and Mr. Babar as well. So आप दोनों के लिए भी ये इतला है कि we have uploaded that software on the portal अब्बासिन यूनिवर्सिटी का. उसे आप डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें. इट्स अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, TORA. TORA is an acronym. TORA. To us, जो मैंने देखा था इसका, that is actually invented by an author of the book named Hamdi Taha. He is a very big name in the field of operations research. So what I or what 2 or 3 of us understood, it is Taha Operations Research Analysis. So it's an acronym of according to his name, the Operation Research, Taha Operation Research Analysis. So it is an OR sort of a tool. Taha is he's an Egyptian, actually, American Egyptian. So वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट. तो आज मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपके लिए करूँगा और कुछ हम एग्जांपल्स जो हल करेंगे उसको मैं उस प्रॉब्लम उसको टोरा में करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप उसको आगे कर सकते हैं. और आज असाइनमेंट भी है एक जो मैंने आपको देनी है. सो आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन टोरा एज वेल. तो उसमें आप करके आई विल टेल यू कि कैसे आपने स्नैपशॉट्स लेके सबमिट कराना है, उसको रिजल्ट्स कैसे सबमिट कराने हैं, इटरेशंस कैसे करनी है. सो नंबर 1. नंबर 2, on the coming Sunday, on the coming class, we are having our first guest lecture. He is from PTCL, और PTCL में he has served around 5 to 6 years now, and he is going to tell us a case study and a very big learning for you guys on QFD. Anybody knows QFD? QFD, Quality Function Deployment. So he will be presenting his work on QFD and the basis of QFD, because if you have seen the course outline, तो हमने quality
का भी एक लेक्चर हमने रखा हुआ है. वी एक्चुअली हैव टू टॉक अबाउट क्वालिटी और टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड टेक्निकल कंसर्न्स. सो उसमें वी हैव इनवाइटेड दिस पर्सन फ्रॉम PTCL and he is going to tell us a lot about how he actually developed this QFD concept in PTCL और उसको कैसे अप्लाई किया उन्होंने. So we'll be welcoming him next Sunday. So I request you, all of you, to be here next Sunday. Make it a point कि आप आएँ because he is going to be our first guest lecturer. Yeah, it will be first of Ramadan. तो हम रमज़ान टाइमिंग्स भी आपको बता रहे हैं. रमज़ान टाइमिंग्स भी बताएंगे तो उस टाइमिंग्स में आपने आना है तो he'll be there. अच्छा, रमज़ान टाइमिंग्स के लिहाज से what we have actually concluded or decided is that हम 2 क्लासेस नहीं करेंगे. हम एक क्लास करेंगे, हफ्ते की एक क्लास करेंगे. 1 class for finance and 1 class for the engineering management science. And we have also decided that we will do it on a single day, maybe on Sunday, so that we start both, ताकि आपको 2 दफ़ा ना आना पड़े. फॉर एग्जाम्पल क्योंकि रमज़ान होगा, वी स्टार्ट एट 10 o'clock विद माई क्लास, वी फिनिश एट 1 और फिर हम 1 o'clock से 3 hours लेके वी आर फिनिश्ड एट 4 o'clock. ठीक है, उसमें भी इफेक्टिवली यू नो दैट 3 hours क्लासेस दे नॉर्मली स्क्वीज टू 2.5 or 2 hours बिकॉज यू डोंट हैव सच एनर्जी लेवल्स इन रमज़ान. सो वी विल स्टार्ट एट 10 और हम दोनों क्लासेस को फिनिश कर देंगे ऑन 1 day ऑन संडे, सो दैट वी आर कंफर्टेबल. यू डोंट हैव टू कम ऑन 2 days. तो अच्छा, ये 3rd अनाउंसमेंट हो गई. एंड 4th अनाउंसमेंट इज ऑफ कोर्स असाइनमेंट, वो मैं आपको आज दे दूंगा. सो विल बी एबल टू सबमिट इट, यू शुड बी एबल टू सबमिट इट नेक्स्ट संडे. राइट, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमने बात की है. Alright, so let's start with today's session, that is lecture number 2, engineering management science. We'll be starting with optimization, and then we'll be going to linear programming, and then I'll be having 1 or 2 problems with me जिससे मैं आपको बताऊंगा तो stretch of LP, and we'll be ending it on some practical questions and use of the software itself and your assignment. So this is our today's session. Alright, so let's start right away. Okay, so some definitions and overview of optimization. The concept of optimization is intrinsically tied to humanity's desire to excel. So optimization is not a very old concept. It's not a very new concept, rather it's a very old concept. ऐसा नहीं है कि नया concept develop हुआ है, काफ़ी पुराना ये concept चल रहा है. I'll tell you some historical details about optimization as well. कहाँ से शुरू हुआ, कैसे, और आपको कहाँ कहाँ traces मिलते हैं इसकी history में भी. So optimization is a very old process and it takes different forms. Structural optimization से बात शुरू होती है. Then there were optimizations carried out in your daily lives. तो आप optimize कर रहे होते हैं as you are moving in your daily lives. ऐसा नहीं होता कि आप optimize नहीं कर रहे. Yes, कभी आप उसको consciously कर रहे होते हैं और कभी आप उसे unconsciously कर रहे होते हैं. Alright, you all know what is optimization. हम उसको define कर रहे हैं formally. Okay, so optimization is a mathematical method and gives rise to a number of algorithmic tools. So optimization एक mathematical model है. As such, it represents a bridge which enables the use of integrated multidisciplinary models to do more effective design engineering work. So it's sort of a bridge. It is sort of a bridge between your physical problem and your mathematical model. अगर आप इसको physically देखें तो over here, if this is your mathematical model and this is your physical problem, so optimization is sort of a bridge जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करवाता है योर फिजिकल प्रॉब्लम इनटू योर मैथमेटिकल मॉडल. ऑफ कोर्स फिर आप मैथमेटिकल मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, लेकिन आप शुरू जो करते हो वो एक ब्रिज के तहत करते हो एंड यू ट्राई टू लिंक योर फिजिकल मॉडल्स विद द मैथमेटिकल मॉडल. ऑलराइट, सो उससे होता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स? Results are maybe your physical model is modified or maybe due to certain inputs your mathematical model is modified. So दोनों चीज़ें हो सकती हैं और दोनों चीज़ों को आप साथ साथ चलाते हो. कहीं आप physical models में modification करते हो, restraints करते हो, constraints लगाते हो, हम देखेंगे सारी terminologies को, और कहीं आप अपने mathematical model को adjust कर रहे होते हो with regards to your physical environment. So both of these things can happen. All right. Okay, now this is optimization. Typically for an engineering manager, optimization means the maximizing or minimizing a function, possibly subject to some of the constraints and controlled by some decision variables or design variables, जिस तरह आप उसको कहना चाहें. So we are actually learning 2 or 3 more things. We are talking about constraints and we are talking about decision variables
In design optimization, this is known as design variables. Okay, and then we are talking about objective function. Objective function. So these are the three basic terms जो कि हम use करते हैं. उसके बाद और भी terms हैं, but we'll go into those terms one by one. So what are constraints? Constraints क्या होते हैं? Limitations. Boundaries. Are boundaries constraints? Not necessarily. Some boundaries may be constraints, but a boundary does not actually mean a constraint. Okay. Then what are parameters? What is the difference between a constraint and a parameter? क्या difference होता है? Gives the outline of the boundaries. But limitation could be inside also. Okay. For limitation, you need not be at the parameter or at the boundary. Okay. For a limitation. It could Okay. be within the system itself. Okay, Babar, can you hear us? Parameter talks of the periphery. Periphery. Parameter is. बाबर आवाज आ रही है आपको? Okay. वो parameter is the boundary or the boundary conditions. Parameter क्या होता है कि you actually set the parameters. You actually set the parameters, and within those parameters you try to fit the constraints, because constraints cannot be outside the parameter. हाँ, parameters कभी कभी constraint भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बाउंड्री के साथ साथ ऑपरेट कर रहे हो तो द पैरामीटर्स आर कंस्ट्रेंट्स. लेकिन हो सकता है कि पैरामीटर्स बहुत वाइडली स्प्रेड हो एंड यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग, योर सोल्यूशन स्पेस इज वेल विद इन द पैरामीटर्स, सो देन द कंस्ट्रेंट्स आर विद इन द पैरामीटर. ठीक है, बट इफ यू आर ऑपरेटिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्रीज ऑफ अ प्रॉब्लम, तो फिर पैरामीटर्स आर कंस्ट्रेंट्स. ठीक है ना. सो these are certain subtle differences between these two things. Okay, then what is the decision variable or design variable? ये क्या होता है? What is a design variable or decision variable? These are the parameters which you want to increase or decrease. Yeah, these are the variables. These are the variables which you want to increase or decrease in order to minimize or maximize. Minimize or maximize what? Minimize or maximize the objective function. This is the objective which you want to achieve. So your design variables or decision variables are affecting your objective function. Okay, and the objective function is actually made out of these decision variables. Made out of these decision variables, and your constraints are also made out of these decision variables or some of the decision variables or design variables. Right? So this is how an optimization problem will formulate. We'll see. हम अगली स्लाइड में देखें कैसे इसको फॉर्मुलेट करना है. अभी वी आर स्टिल एट अ वेरी इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. ओके, सो लुक एट दिस. व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? मेकिंग थिंग्स बेटर, generating more profit, okay, determining the best, or doing more with less. So all of it is optimization. Okay, all of it is optimization. The determination of values for design variables which minimize or maximize the objective while satisfying all constraints. Another definition of optimization. So I have given you a figure as well. Okay, what do you say? Is it optimization or not? Overloaded. Yes. Optimization है या नहीं है ये? It is. In a way it is optimization, because utilization of maximum loading capacity of a truck. वो अपने लिहाज से तो ऑप्टिमाइज करे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ा डिफरेंस है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीड्स, यस इट इज नॉट ऑप्टिमाइजेशन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लोडिंग, then maybe it is an objective function, maybe it is an optimization, because he is trying to maximize the objective function. Okay, so all of it, after the point of view actually will tell you what is your objective function. Cost है, weight है, distance है, what is your objective function. So objective function के लिहाज से आपका optimization की definition change होती है, access change होता है. Okay, so this can be optimization as well. So actually optimization would, we would say that something is optimized in viewing the objective function.
Yeah, by constructing the objective function, because you are going to translate your objective into that objective function. So according to that objective function, you will say that which parameters to optimize. Maybe it may be optimization for some objective function. Yes. But on the other hand, it may not be for another. Yes. You know, optimization is actually reaching a compromise. Actually reaching a compromise surrounded with certain constraints. Okay, you reach a compromise. For example, you say that okay, I have 30 minutes of gas left and I have 3 liters of petrol left. What should I do? Either I should go on gas or I should convert. So this is optimization. You are actually accepting the worst with something good. Alright, this is optimization. Okay, so optimization in engineering interpretation is referred as the process of finding appropriate solutions. Okay, so optimization is also a computational design method. So engineering managers look at optimization from very different views. एक व्यू नहीं है. अगर आप एक engineering manager काम कर रहा है जहाँ he is very closely related to sales and marketing domain, so he'll look at optimization as regards to maximization of sales or minimization of manufacturing costs. There is another engineer जो कि optimization को देख रहा है on factory settings. So he'll be looking at optimization from a very different point of view. So this is how you want to look at optimization. एक चीज़ नहीं है बल्कि there are different views, different point of views जिससे कि आप optimization को देखते हो. But what it is, in essence, it is that you are trying to make a compromise and you are trying to accept the best with some very bad things as well. Okay. Look at the history of optimization. The first and earliest signs of optimization actually they come once you look at the pyramids. Structural optimization जो है वो Egyptian pyramids में that is at par excellence. जो structural optimization की गई थी. So think of the structural engineers and civil engineers which were there at ancient Egypt. You can look at Gaza pyramids and you can well imagine कि किस तरह उसको optimize किया गया था. और अब structural symmetries और जो optimization techniques हैं वो they are actually verifying whatever happened in ancient Egypt with the pyramids. So figures like this come into are actually now being generated which are telling us that those pyramids were a very good example of structural optimization. Structures के लिहाज से maximum load carrying capacity with minimum stresses. Okay, so you have a maximization function and you have a minimization function. How they have happened to achieve it through making different structures. That is structural optimization. That's why they are still standing. So many things जो कि इसमें आप देख सकते हैं. For example, right now आजकल ATCs और air traffic controls use optimization for the routes. जितने भी आपके ATC में routes optimization होते हैं, they have different algorithms, they have different techniques, and they actually optimize your routes once you are flying from one point to another point. और जैसे जैसे air traffic बढ़ रहा है, these techniques are getting more and more complex. और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं और उसमें ज़्यादा इंट्रिकेसीज आ रही हैं एंड पीपल आर यूजिंग दोज टेक्निक्स एट वेरी हाई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल स्पीड्स बढ़ रही हैं कंप्यूटर्स की. Okay, so the best example of the engineering management optimization comes, there is a small little video जो कि YouTube पे है which actually जो topic है उस वीडियो का that is construction and fabrication of Boeing 777 जो कि आजकल का इट्स अ मॉडर्न वंडर ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड एरोस्पेस. तो उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि कैसे इंजीनियर्स ऑप्टिमाइज्ड एवरीथिंग बिकॉज बोइंग 777 वाज मेड नॉट इन वन प्लेस बट उसके बहुत जगहों पे स्कैटर्ड उसकी फैब्रिकेशन थी. ऑस्ट्रेलिया में उसका वर्टिकल फिन बन रहा था एंड सब सिमिलरली इंजन्स कहीं और बन रहे थे. एंड तो हाउ एक्चुअली दे केम अप with the whole plan, how to optimize these things और किस तरह एक जगह जाके उन्होंने उसको assemble किया. So you can watch this video और I'll try कि मैं next class में या उससे next class में वो वीडियो का कुछ clips ला भी सकूँ. So last bullet is very important. Engineers must be systems thinkers. आजकल जो बेसिक एसेंस है वो क्या हो गया कि engineers must be system thinkers and they have to become adept at synchronous design in virtual design environment. So अब जो है engineers और engineering managers जो हैं they cannot do away with optimization.
ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन इज ओनली लेफ्ट टू द डिज़ाइन इंजीनियर और इट इज़ ओनली लेफ्ट टू अ पर्सन जो कि टोटल मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहा है। इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग मैनेजर्स दे आर टू बी इक्विप्ड विद द ऑप्टिमाइजेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है या आज का जो हमारा कोर्स है उसमें इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन है। देयर इज अनदर सेपरेट कोर्स विद इन दिस डिग्री विच इज़ नोन एज डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑप्टिमाइजेशन, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो पूरा भी पढ़ाया जाएगा। But 777 की वैसे जो optimization important थी वो ये थी कि there was no prototype for this aircraft. Exactly. It was all software based. बिल्कुल बिल्कुल Software पे टेस्ट करके और डायरेक्टली मैन्युफैक्चर किया। एग्जैक्टली। वो आगे में एक स्लाइड है उसके हवाले से। Which can do everything, उसमें वो CFD और I have a flow chart of this as well, आगे साइड में आएगा जिसमें मैंने Boeing 777 की ऑप्टिमाइजेशन को दिखाया है। When was it done? अभी की बात है, इतना पुराना भी नहीं है। Boeing 777 लेटेस्ट है, 2005 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 2005 ऑनवर्ड्स। हाँ इतने में बिल्कुल, उससे पहले नहीं थे। और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, कन्वेंशनल प्रोसेस क्या होता था और फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या है और उन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो आप देखते हैं कि अच्छा फर्स्ट बुलेट में आप देखें कल्चरल शिफ्ट इन द वे, मैंने जो लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से लिखा है ये बुलेट, बिकॉज अब जो है ना वो कल्चरल शिफ्ट आ गया है। यू नीड हैंड्स ऑन टूल्स, आपको हैंड्स ऑन टूल्स ऑप्टिमाइजेशन के आने चाहिए अगर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की किसी से बात करनी है और इफ एट ऑल यू वांट के आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फील्ड में आगे जाएं। सो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो this is a part and parcel. So this is how a typical optimization problem looks like. You have an objective function which you want to minimize or maximize. देखिए, this is the objective function, whatever it is, you want to minimize or maximize this objective function subject to the constraints. Constraints क्या होते हैं, हमने बात की थी, constraints are those boundaries or those limitations. हम constraints क्यों develop करते हैं, ये कोई मुझे बताएगा, why we develop constraints, क्यों develop किए जाते हैं constraints? हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो जाए। हाँ। हम ऑफलाइन बात नहीं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स हम इसलिए डेवलप करते हैं बिकॉज द फिजिकल कंडीशंस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड 100% इनटू अ मैथमेटिकल मॉडल। दे कैन नॉट बी बिकॉज फिजिकल कंडीशंस आर वेरी डायनामिक। मैथमेटिकल मॉडल एज ए सिचुएशन का स्नैपशॉट तो ले लेता है, लेकिन वो जितने ओवरऑल फिजिकल कंडीशंस पे चीजें अप्लाई हो रही सारों का अहाता नहीं कर सकता। सो हम लिमिट करते हैं। Why we develop constraints is because we transform a physical model into a mathematical model. ठीक है ना, क्योंकि आप लिमिटेशंस खुद लगाते हो और अज्यूम करते हो। कंस्ट्रेंट्स आर व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, अगर फिजिकल कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करते हो ना तो दे आर बेसिक द अजम्पशंस व्हिच यू मेक। assumptions आप बनाते हो so that your physical model is transformed into a mathematical model for further analysis and further solutions. So this is the foremost reason जिसकी वजह से आप constraints develop करते हो। Otherwise अगर आप देखो तो physical environments में there are infinity constraints. इन्फिनिटी जो है ना चीजें हो रही हैं, आपके अपनी लाइफ में देख लो, हजारों चीजें हो रही हैं, बट यू कैन नॉट एक्चुअली डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन इन्फिनिटी सॉर्ट ऑफ एक्टर्स और इन्फिनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि आप पे असरअंदाज हो रही हैं। सो कुछ को आप एलिमिनेट कर देते हो और जो रह जाती हैं उनकी बाउंड्री सेट कर देते हो। सो आप लिमिट कर देते हो अपने फिजिकल मॉडल को। सो कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑन द फिजिकल मॉडल इटसेल्फ। कंस्ट्रेंट्स फिजिकल मॉडल पे लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा आपकी वेल डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स होंगी उतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम अ फिजिकल मॉडल टू अ मैथमेटिकल मॉडल। सो ऑप्टिमाइजेशन में द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर कंस्ट्रेंट अच्छा डेवलप होगा तभी मैथमेटिकल मॉडल आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स देगा। अगर आप कंस्ट्रेंट्स गलत डिफाइन कर देते हो सो देन दिस इज नॉट अ करेक्ट डिपिक्शन ऑफ योर फिजिकल मॉडल, व्हिच मींस दैट जितना मर्जी आप एनालिटिकल टूल इसके आगे लगा दें, रिजल्ट्स आपको फिजिकल मॉडल वाले नहीं मिलेंगे। So constraints are for further पहली चीज ये developed actually limit your physical model. Physical model को limit करने के लिए आप constraint लगाते हो, ये उसका जो है ना वो conceptual base है constraint का।
Okay, looking at the model itself, so you have an objective function which can be a minimization function or a maximization function. ठीक है ना, इसमें आजकल जो मॉडल आते हैं उनको आप मिन मैक्स मॉडल भी कहते हो। उसमें आप एक कंस्ट्रेंट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हो लेकिन ओवरऑल उसको मिनिमाइज कर रहे होते हो। ये मिन मैक्स मॉडल भी कहलाते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। आपने शायद अगर लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने जिक्र किया दो काइंड ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है लोकलाइज सॉल्यूशन और एक होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन। इसमें क्या फर्क है? What is a local solution or local optimization or what is universal optimization? Localized or local optimization which may be something which has to do with a very narrow viewpoint or your own conditions. Whereas when you talk of universal optimization, it should be able to fulfill all the requirements of as many customers or people that you are considering. जी उमेर। लोकल भी होता है कि लेट्स सपोज आपने को ट्रेड को सेट किया, अगर आप एक्स को छेड़ते हैं तो फिर यूनिवर्सल ऑप्टिमाइजेशन में पी भी इफेक्ट होता है। Anybody else? Specific and universal is generic. Okay, बिल्कुल। देखिए लोकल ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एंड इफ यू आर एक्चुअली concentrating on this point, so at this point you have local minimas and local maximas, but these local minimas and local maximas are not the minimas and maximas of the whole function. ठीक है, so this is the difference between a local optimization and a universal optimization. So इसी तरह की techniques हैं in which you find but they are actually varied depending on the constraints. For example, अगर आपने एक पूरा function develop किया है और आपके constraints ऐसे हैं कि you have to limit your solution within the constraint. So अगर within the constraint जो solution होगा that will be a local solution, local minima and local maxima, because जो constraints हैं they are local constraints. They are not global constraints or universal constraints. लेकिन अगर आप इस पूरे फंक्शन पे कोई constraint लगाते हो और उस पूरे constraint को आप solve करते हो and then there is a maxima over here, so this is a universal or a global maxima. So this is the difference between a local optimization technique and a global optimization technique. अब होता क्या है कि जितने भी tools and techniques पढ़ाई जाती हैं आपको optimization में, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन दे, ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्शन देना जरूरी होता है। सो दैट ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्शन हैज जो आपको देते हो वो आपको बताती है कि आइदर यू आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ लोकल मिनिमा और अ लोकल मैक्सिमा और अ ग्लोबल मिनिमा और अ ग्लोबल मैक्सिमा। सो हम उन टेक्निक्स की भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ रिसर्च डायरेक्शन देती हैं और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लोकल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो है वो डायरेक्शन देती हैं। हाँ हाँ, उसको हम होलसेल लेंगे, उसको हम होलसेल लेंगे, लेकिन असल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो बहुत वाइड है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो अगर आप उसके अंदर वाले प्रॉब्लम को पहले टैकल कर रहे हो तो फिर आप लोकल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। दैट लोकल सोल्यूशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द होल प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसमें फिर एमडीओ का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज एमडीओ? हमने बताया भी था पिछली क्लास में, शायद हमने जिक्र हुआ है। एमडीओ इज नोन एज मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप, जैसे आपने बात की ना उमैर ने, वो एक सिस्टम लेते हो, उसमें आप सब सिस्टम्स बनाते हो और सब सिस्टम्स में आप ऑप्टिमाइजेशन टूल्स यूज करके ऑप्टिमाइज कर रहे होते सब सिस्टम्स को, बट ऑल ऑफ दीज सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड। सो आप पहले लोकल ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हो, फिर आप उससे जब ऑप्टिमाइजेशन करते हो फिर आप ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन पे आते हो। सो इस तरह की चीजें जो है ना वो यूज हो रही है। ऑलराइट, सो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, और उसके बाद फिर बाउंड्री कंडीशंस आ गई, ठीक है ना, जो मैं जो थर्ड उसमें दिया, दीज आर योर बाउंड्री कंडीशंस, लोअर बाउंड्रीज एंड अपर बाउंड्रीज, ठीक है। सो इस तरह आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते हो। यू हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड सब्जेक्ट टू योर बाउंड्री कंडीशंस और बाउंड्रीज। सो एट द एंड व्हाट यू गेट अ डिजाइन वेक्टर और अ डिसीजन वेक्टर जो आपको डिसीजन डायरेक्शन देता है। एट द एंड यू गेट अ डिजाइन वेक्टर और अ डिसीजन वेक्टर जो कि आपको जो है वो सॉल्यूशन की डायरेक्शन देता है। अब सॉल्यूशन की डायरेक्शन हासिल करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स एज वेल एंड डिफरेंट एल्गोरिथम्स एज वेल, उस पर हम आगे बात करेंगे।
ओके, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था 777 की आप बात करें तो ये एक फ्लो चार्ट था कि जो कि कैड मॉडल जो 777 का डेवलप हो रहा था उसमें उन्होंने किया. सो दे स्टार्टेड विद, अब देखिए एवरीथिंग इज वर्चुअल, दे स्टार्टेड विद अ कैड मॉडल. उसके बाद दे एक्चुअली कन्वर्टेड दैट कैड मॉडल इनटू अ ग्रिड और इनटू जीरोस एंड वंस. उसके बाद इंजीनियरिंग एनालिसिस वाज डन ऑन दैट ग्रिड. और फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आया, ड्रैग बहुत ज़्यादा अचीव हो रहा था. देन दोबारा डिज़ाइन इंजीनियर के पास बात आई, मॉडल चेंज किया गया और फिर से उसको कैड मॉडल में होलिस्टिकली देखा गया. सो यहाँ आपकी बात का जवाब आ जाता है कि दिस इज द लोकल ऑप्टिमाइजेशन. फॉर एग्जांपल इंजन के नैसल में आप देख रहे हो तो दिस इज लोकल ऑप्टिमाइजेशन. बट जब आपने उसको इंटीग्रेट किया तो आपने इंटीग्रेट कर दिया इनटू अ ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन थिंग, बिकॉज वो पूरे एयरक्राफ्ट का आपने देखना था इसको. एंड दिस इज ऑल डूइंग इट वर्चुअली. जैसे उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा नहीं था कि प्रोटोटाइप डेवलप हो, वर्चुअल डिजाइन था, वर्चुअल एक्सेप्टेंस हुई और फिर एट द एंड प्रोडक्ट वाज डेवलप. अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट कीप ह्यूमंस आउट ऑफ द चेन. यू कैन नॉट कीप देम आउट ऑफ द चेन बिकॉज ऐसा नहीं है कि इतने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं कि आप ह्यूमंस को कहें जी कि आप साइड पे बैठ जाए, हम सारा काम करते हैं. नो, ह्यूमंस आर देयर. जब डिसीजन लेना है तो ह्यूमंस आएंगे और जब डिसीजन लेना है तो ह्यूमंस को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. एनालिसिस करना है तो ह्यूमंस आएंगे. कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो तो उन्होंने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है, आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ाई है, लेकिन जो आपने मॉडल बनाना है वो तो ह्यूमंस बनाएंगे. सो यू कैन नॉट कीप दीज पीपल आउट ऑफ द वे. नहीं, उनको नहीं नजर, उनको हमने स्लाइड्स भेजी हैं. हाँ, वो स्लाइड्स के हवाले से. जी बाबर, कैन यू हेयर अस? इट इज वेरी हार्ड टू हेयर. नहीं समझ आ रही? अच्छा, सो आई शुड बी हेयर एज वेल. हाँ, मे बी वी नीड एन इंटीग्रेशन, माइक के साथ इंटीग्रेशन मेरा ख्याल है ज़रूरी है. हाँ हाँ, स्काइप पे वो आवाज़ नहीं आती ना फिर. बेटा मेरा तो जर्मनी में वो अगर हम दूर बैठ के बात करें तो कहते क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रही, गरीब आदमी. अच्छा. Okay, Babar, Umair is saying that you only understand Umair. समझ आ गई उन्हें. ओके बाबर, विल ट्राई विद नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, ठीक है ना? आई थिंक वो जो इनका लेक्चर है ना सर, वो आप देखिए तो उससे बड़ी आपको इजी समझ आ. कोई मसला नहीं है इतना, मेरा ख्याल है. ओके, हैव यू गॉट द स्लाइड्स बाबर? सीडीज इनको प्रोवाइड करते हैं सब. बाबर स्लाइड्स हैं? अच्छा, ओके. अच्छा, दिस वाज अयाज महमूद. कहते हैं उमैर को समझ आएगी और किसी को समझ नहीं आएगी. ओके, सो ट्राई टू बी विद अस. देखते हैं कहाँ तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को. हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, सो वन इज गॉन. ऑलराइट, लाइट चलेगी मेरे ख्याल उसकी. ओके, so this is the optimization problem, how actually an optimization problem looks like. All right, so you have some constants or you have some boundaries. Develop a model, get the response, okay, और उस response की rate of change आप देखते हो with as regards to your decision or design variables, ठीक है. और फिर optimizer कहाँ use होता है? Optimizer is actually there to check the design sensitivities. जब आप रेट ऑफ चेंज देखते हो और कब आप ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को खत्म करते हो, कब खत्म होना चाहिए ये? जब ऑप्टिमाइजर कहता है कि चीज ऑप्टिमाइज होगी. आपको क्या लगता है इस डायग्राम से? व्हेन इट शुड स्टॉप, व्हेन द ऑप्टिमाइजेशन शुड स्टॉप? once you achieve your objective, and objective will be achieved once as regards to your design variables the rate of change is no more there or it is constant. You are getting a constant response with respect to your design variables. मॉडल का रिलेशनशिप हम देख रहे थे. तो आपको इससे क्या समझ आता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉडल एंड द ऑप्टिमाइजर? हाउ डज ऑप्टिमाइजर फिट इनटू ऑल दिस? कैसे फिट होता है? जी, ठीक है.
which may have some constants which you cannot change, and then there are some variables which you can control. ठीक है, Optimizer is sitting here which controls your variables based on some change ठीक है, in the overall system output. ठीक है, So whenever that change is optimal, हाँ, of that और वेन एवर दैट रेट ऑफ चेंज इज डिजायर्ड, तो जिस रेट पे आप चाह रहे हो उस रेट पे चीज़ आ जाती है, या रेट ऑफ चेंज स्टॉप हो जाता है। अगर आप इटरेटिव मेथड की बात करते हो तो क्या होता है इटरेशंस में, द रेट ऑफ चेंज इट स्टॉप, सो द ऑप्टिमाइजर स्टार्ट्स गिविंग यू द कांस्टेंट आंसर्स, वो कांस्टेंट आंसर्स देना शुरू कर देता है। आप कहते हो कि यार यहाँ इटरेशंस रोक दो। सो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, इट इज़ अ टूल एक्चुअली टू वैलिडेट योर मॉडल, और मॉडल से जो डिसीजन वेरिएबल्स और रिस्पॉन्सेज आप चाह रहे हैं उनको इन रिस्पॉन्स टू योर डिज़ाइन वेरिएबल्स यू आर चेकिंग, और जब भी उन रिस्पॉन्सेज का रेट ऑफ चेंज विद योर डिज़ाइन वेरिएबल इज कांस्टेंट, दैट ऑप्टिमाइजर गिव्स यू द सोल्यूशन। So this is the function of optimizer, and this is the relationship of optimizer and the model itself. Okay? अच्छा, मॉडल कहाँ से आया था? मॉडल अगेन इट केम फ्रॉम द फिजिकल कंडीशंस। उसमें जब आपने कंस्ट्रेंट्स डाले थे तो मॉडल बना था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसमें शामिल है, इसमें कंस्ट्रेंट्स भी शामिल है, इसमें डिसीजन वेरिएबल्स के जरिए आपने पैरामीटर्स भी रखे हुए हैं। ऑप्टिमाइजर आप यूज कर रहे हैं टू वैलिडेट द मॉडल, ठीक है ना। सो दिस इज द टिपिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉडल एंड एन ऑप्टिमाइजर। सो आप उसमें देखिए डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली वेरी हो रहे हैं, जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स को देख रहे हो और रेट को देख रहे हो, चेंज ऑफ रिस्पॉन्स विद डिसीजन वेरिएबल, सो कॉन्स्टेंटली इटरेट होके ये मॉडल में फीड हो रहे हैं। सो इट्स अ फीडबैक लूप मैकेनिज्म, ठीक है, इट्स अ क्लोज लूप मैकेनिज्म, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो वैलिडेट हो रही हैं। हाँ हाँ, असल में हाँ, बेसिकली जब आप वही बात आ गई कि अगर आप इस मॉडल में आपने ये देखना है कि आप किस रिस्पॉन्स को सामने रख के उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो। अगर तो आप यूनिवर्सल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो फिर तो ये होगा कि सेपरेट रिस्पॉन्सेज एंड देन कंबाइंड रिस्पॉन्स, कंबाइंड रिस्पॉन्स आएगी तो आपका मॉडल वैलिडेट होगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो लोकल और लोकल मैक्सिमास और मिनिमास की, और एक रिस्पॉन्स को देखते हुए आप पूरे मॉडल को वैलिडेट कर रहे हो, तो फिर वो एक रिस्पॉन्स पे बात बनेगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस इन विच यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दैट वन बाय वन रेट ऑफ चेंज। और उसके बाद फिर जब आपकी डिज़ाइन सेंसिटिविटीज़ आप अगर पूरे मॉडल की देखना चाह रहे हो, फिर क्योंकि होगा क्या, अब जैसे मैंने लिखा ना रिस्पॉन्स एफ जी एंड एच, अल्टीमेटली होगा क्योंकि दीज रिस्पॉन्सेज विल आल्सो बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सम अनदर वेरिएबल। तो फिर अब उन वेरिएबल्स को जब आप देख रहे होगे तो फिर आप इन तीनों के रिस्पॉन्स को कंबाइंड देख रहे होगे। सो दैट डिपेंड्स कि आप रिस्पॉन्स को कैसे आपस में इंटरलिंक करते हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल, कि आपने रिस्पॉन्स को कैसे इंटरलिंक किया। नहीं हाँ 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 हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसको लिमिट देते हो, आप उसको जब सोल्यूशन स्पेस देते हो ना, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज सोल्यूशन स्पेस, तो असल में ऑप्टिमाइजेशन होती है उसी में। और फिर जो ऑप्टिमाइजर्स होते हैं उनका एक खास तरीका होता है, वो कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्यों पकड़ते हैं उस पर हम बात करेंगे, बिकॉज सोल्यूशन तो कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन वो कॉर्नर पॉइंट्स पे चलते हैं। उसमें एक यूज होता है, आपने मैथ में पढ़ा था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, वो गॉस जॉर्डन को यूज करते हैं। वो पहले उसे मैट्रिक्स फॉर्म डालते हैं, वहां से गॉस जॉर्डन यूज करते हैं, तो वहां से फिर वो कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ के सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक, ये हाथ से कर सकते हैं, हाथ से ही करेंगे, हाथ से इंशाल्लाह करेंगे, इसको करवाएंगे भी हाथ से। ओके, सो ओके, ये देखिए ये डिफरेंस है। अब मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि अगर आपने एक साइड मिरर एक गाड़ी का बनाना है, और इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दीज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, और आप ट्रायल एंड एरर पे चलते हो, तो आपको देखो कि कैसे ऑन द लेफ्ट एक साइड मिरर आपका बनता है। अगर आप तोड़ते रहोगे, उसे बनाते रहोगे, और तोड़ते रहोगे और बनाते रहोगे। अब डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया जब आप ऑप्टिमाइजेशन बेस को कर देते हो डिज़ाइन प्रोसेस में, सो यू हैव अ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से आप चीज़ें क्रिएट करते हो, और आखिर में जो चीज़ क्रिएट होती है दैट इज़ अ रिफाइंड क्रिएशन। सो दिस इज द डिफरेंस। पहले आप हिट एंड ट्रायल से बात चल रही होती थी, लेकिन अब क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गई है, तो यू हैव सम रूम अवेलेबल फॉर वर्चुअल डिज़ाइन, एंड
वर्चुअल वैलिडेशन ऑफ दैट डिज़ाइन और वर्चुअल वैलिडेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट एज सच। उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है, इट इज़ अ रिफाइंड थिंग। ओके, सो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस। ये कुछ टाइप्स है, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन मैंने कहा कि कुछ आपको टाइप्स बताए जाएं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से, सो देयर आर सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन विच आर कंस्ट्रेंट एंड सर्टेन विच आर अनकंस्ट्रेंट। अनकंस्ट्रेंट क्या होगा? अनकंस्ट्रेंट वो होगी कि जिसमें कोई आप कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा रहे, आप उसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे। आपको मैटलैब की एक वो कमांड याद है, FMIN यूज करते होते हैं मैटलैब में, तो उसमें क्या होता है कि आप मिनिमाइजेशन फंक्शन कर रहे हो अनकंस्ट्रेंट, फिर आगे आप फंक्शन लिख देते हो, तो दिस इज अनकंस्ट्रेंट। जब आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है और उससे उसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो रिगार्डलेस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स लगाते हो, ऑफ कोर्स हम जब कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो आप उसमें लिमिट कर देते हो उस चीज़ को। उसके बाद देर आर डिज़ाइन टाइप है डिज़ाइन वेरिएबल्स के लिहाज से, देर इज़ अ सिंगल डिसीजन वेरिएबल और डिज़ाइन। अच्छा बात याद रखिए, कुछ किताबें से डिज़ाइन वेरिएबल कहती हैं, कुछ डिसीजन वेरिएबल्स कहती हैं, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन जब डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली नोन एज डिज़ाइन वेरिएबल्स। अदरवाइज इन जनरल ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन रिसर्च बुक्स इट इज़ नोन एज डिसीजन वेरिएबल। So this is the slight difference. Single variable versus multiple variables. Then there are non-linear optimization techniques and linear optimization techniques. Okay. Then there is dynamic optimization and static optimization. And of course, then there is deterministic versus stochastic optimizations. ठीक है. आखिर में क्या difference है? What is deterministic and what is stochastic? डॉक्टर साहब को stochastic का अच्छा बताया, इन्होंने मुझे समझाया था एक दिन. ठीक है. तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिटरमिनिस्टिक एंड व्हाट इज स्टोकेस्टिक्स? डेटा के लिहाज से आप देखें अगर जी, व्हाट इज स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन? आप ही हमें बताएं। डिटरमिनिस्टिक तो इस तरह से होगी ना कि आपके पास एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है, लाइक x इज इक्वल टू या मे बी y इक्वल टू x प्लस x प्लस x समथिंग लाइक। ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। स्टोकेस्टिक मींस कि कोई प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप है, इसमें देयर इज नो फिक्स्ड रिलेशनशिप बट देयर इज वेरिएशन बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटीज। बिल्कुल, अब प्रोबेबिलिटीज जनरेट हो रही है बिकॉज जनरेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, रैंडम वेरिएबल्स के जरिए आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं और उन प्रोबेबिलिटीज के जरिए आप जो है ना वो आगे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दैट इज नोन एज स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। डिटरमिनिस्टिक ये है, यू हैव सम डेटा, आपके पास रियल डेटा है, यू हैव सम रिलेशनशिप्स, यू हैव अ रिग्रेशन इन प्लेस, आपके पास कोई रिलेशनशिप मौजूद है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका जो है वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ऐसा नहीं है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट याद है ना आपको क्या होता था? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके पास जीरो नहीं है, बल्कि इट इज समवेयर आगे पीछे है, 1 की तरफ है या -1 की तरफ है। तो दे हैव सम रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जब आप उस तरह की रिलेशनशिप में ऑप्टिमाइजेशन करते हो, इट इज डिटरमिनिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इफ देयर इज नो कोरिलेशन और आपके पास रियल डेटा नहीं है एंड यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे हो आप रैंडम वेरिएबल्स की वजह से, सो और फिर उसके बीच में कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। तो आई एक्सपेक्ट कि आप जो है ना ये तीनों चीज़ें देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। व्हाट आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, व्हाट आर रैंडम वेरिएबल्स एंड हाउ यू जनरेट प्रोबेबिलिटीज आउट ऑफ दिस। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपको किसी भी बेसिक स्टैट्स की बुक में से मिल जाएगा। सो ये काइंडली देख के आइएगा, क्योंकि आगे हम इसी की बात भी आगे किया करेंगे। सो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस क्या होता है? व्हाट इज कंटिन्यूस एंड व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट होता है वंस यू हैव डिस्क्रीट सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज डिस्क्रीट सॉल्यूशन। कंटिन्यूस होता है कि इन कंटिन्यूटी, फॉर एग्जांपल आप 0 से 1 तक देखें, देयर इज इन्फिनिटी, रेंज ऑफ नंबर्स इन्फिनिटी, यू हैव इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। सो आपने उसको फ्रैगमेंट नहीं किया होता, आपने उसको एक खास गैप के बाद नहीं लिया होता। गैप इज there is no gap between the solution, that is discrete solution. Continuous solution. Discrete optimization में जो टेक्निक यूज होती है OR की, that is known as ILP, Integer Linear Programming। हम ILP को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये बेसिकली डिस्क्रीट सॉल्यूशंस के लिए यूज होती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज अ टेक्निक यूज्ड। कंटिन्यूअस के लिए डिफरेंट है, वो हम देखेंगे अगर स्कोप से ज़्यादा चलेंगे, बिकॉज एज आई सेड द होल कोर्स इज एक्चुअली डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन इज द कोर्स। तो मैं इसको सिर्फ टच कर रहा हूँ एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर तक, तो उसमें आपको
कॉन्सेप्ट देना मकसूद है कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, हाउ यू आर गोइंग टू डू अबाउट इट। ओके, सो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस जो कि बताई जाती हैं और की जाती हैं। हम इसमें आज के लेक्चर में हम इसको मैक्सिमम लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे और मैक्सिमम एक कोई करेंगे, हम फंक्शन देखेंगे जो नॉन लीनियर फंक्शन है उसको हम टच करेंगे और फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे। ओके, अब ये देखिए दीज आर द मेथड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है, सीकेंट मेथड है, ग्लोबल मैक्सिमास मिनिमास के लिए प्लस लोकल मैक्सिमास मिनिमास के लिए, फिर बाइसेक्शन मेथड है, लाइन सर्च मेथड है। असल में जो लाइन सर्च मेथड है या SQL है, फॉर एग्जांपल आई नो SQL प्रॉब्ली आर्ग्यूबली इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि आपको एक डायरेक्शन दे देती है। अगर आपने कोई डायरेक्शन मालूम करनी है या सर्च डायरेक्शन मालूम करनी है तो सीक्वेंशियल क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स जो कि आपको ग्लोबल लेवल पे एक डायरेक्शन दे देती है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। देन देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, क्रॉस-कुन-टकर टेक्निक, बहुत KKH टेक्निक से कहते हैं, KKT टेक्निक, वेरी गुड टेक्निक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। आई डोंट नो हम इस पे जाते हैं या नहीं जाते, बट ऑफ कोर्स आपको बताना ये था कि देयर आर मेनी टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। ओके, व्हाई ऑप्टिमाइजेशन? बिकॉज आजकल का डिज़ाइन प्रोसेस या आजकल का जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट कॉस्ट रिडक्शन एंड मोर फ्रीडम, and cost reduction and more freedom with more dissemination of knowledge. So आप देखें तो इस ग्राफ में जस्ट टू शो यू कि जैसे जैसे आप डिज़ाइन प्रोसेस में जाते हो, कॉन्सेप्ट फेज से लेके प्रोडक्ट रिलीज तक, तो पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा जब ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। सो वी विल बी हैविंग more cost reductions with more freedom till the end and with more knowledge transfer. So उस हवाले से आजकल जो है वो ज़्यादा पढ़ाई जाती है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बढ़ गई ना बेसिकली। यहाँ ये था जो हाँ देखिए ना, ये था कि ये फ्रीडम आपकी जो थी, ये जब आप जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे तो वो तो अब यह है कि आप रीडिज़ाइन तक चले जाते हैं। बिकॉज यहाँ जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसकी वजह से दैट इज़ नोन एज PLM, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का कॉन्सेप्ट आ गया है। उसमें हम एक अपने गेस्ट स्पीकर को भी बुलाएंगे, वो आपको बताएंगे व्हाट इज़ PLM। सो ये सारा जो है ना, दैट एक्चुअली इज ट्रांसफॉर्म इनटू PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और आजकल सिमंस वगैरह जो है इसमें बहुत काम कर रहे हैं। और एक कंपनी है, उसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, दासू। इट्स नॉट डिसॉल्ट, इट इज दासू। दासू का जो PLM सॉफ्टवेयर है, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट। उसका सॉफ्टवेयर का नाम है विंडशिल। द PLM सॉफ्टवेयर इज विंडशिल। सो हाँ, विंडशिल आजकल जो है ना वो दैट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। और नस्ट इज एक्चुअली हैविंग दिस लाइसेंस ऑफ विंडशिल, और इन द नेक्स्ट सेमेस्टर वो उसको जो है ना उसकी एक लैब, लोकल लैब बनाएंगे, विच इज़ द ओनली विंडशिल लैब प्रॉब्लली इन दिस रीजन, जिसमें कि ये PLM सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सिखाया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव वाली, ये बात कर रही हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, ठीक है। और उसमें जो आपके पास टेक्निक है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, तो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स इज विंडशिल। ओके, सो लेट्स नाउ कन्वर्ज फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हम ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक्स पे थे, अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। एंड फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग वी विल बी मूविंग टू MDO, मल्टीडिसिप्लिनरी ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स सी कि आज हम कहाँ तक जाते हैं। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वेरियस लीनियर इनइक्वालिटीज relating to some solutions and finding the best value obtainable under those conditions. A typical example would be taking the limitations of materials and labor and then determining the best solution out of materials and labor situations. Linear programming क्या करती है? Linear programming actually converts your physical solution into equations. और equations से फिर solution के दो मेथड हैं जो बेसिक पढ़ाए जाते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है। तो अगर आप उसे ड्रॉ करते हो देन इट्स अ ग्राफिकल मेथड, और अगर आप उसको इक्वेशंस के जरिए सॉल्व करते हो तो वो सिंप्लेक्स मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड में आप एक चीज़ जनरेट करते हो, उन्होंने सिंप्लेक्स टैब्लो। तो सिंप्लेक्स टैब्लो आज हम जनरेट करना वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो टोरा है दैट एक्चुअली डिमांड सिंप्लेक्स टैब्लो, उसमें आप वो डाल दें तो खुद ब खुद इटरेशंस करता चला जाता है। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है दैट इज देयर। मेरा ख्याल यू आर वेरी वेल कन्वर्सेंट विद लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या है?
उसको हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम देखते चले जाते हैं. Okay, so in real life, LP is part of a very important area of mathematics called optimization techniques. Of course, we know that, and this field of study it is used every day in the organization and allocation of resources. So real life systems पे use होती है. 2 variables हो सकते हैं, 3 variables हो सकते हैं. Anything which is linear programming. So you can have number of variables, number of constraints, number of objective functions, whatever you want. तो linear programming is used. very simple technique, लेकिन बड़ी pertinent और potent technique है. तो हम LP को आज use भी करेंगे. Okay, so this is the general process. Please have a look. इसको पढ़ें और if you have any questions or discussions, we can discuss. Okay, so कॉर्नर पॉइंट्स का बड़ा जिक्र सुनेंगे आप. लीनियर प्रोग्रामिंग की जो भी मेथड होगा उसमें यू विल एक्चुअली लर्न अबाउट कॉर्नर पॉइंट्स. ओके, हम उसको डिस्कस करेंगे कि वाई कॉर्नर पॉइंट्स, उसको भी हम देखेंगे. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. एक स्लाइड में मैंने आपको बताया किस तरह आपने इसको करना है. ठीक है, इट इज अ जनरल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन एलपी मॉडल इज टू ग्राफ द इनइक्वालिटीज, टू फॉर्म अ वॉल्ड ऑफ एरिया ऑन द प्लेन. Then you figure out the coordinates of the corner points and test these corner points in the formula, जो कि इक्वेशन आपकी होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली, for which you are trying to find the highest or lowest value. So this is linear programming explained in just one slide. Very simple, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया. ये देखें, इस तरह का एक सोल्यूशन लगता है जब आप ग्राफिकल मेथड पे करते हो. कोई भी मैंने ये ले लिया, कोई नॉट पर्टिकुलरली वन थिंग, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपका ग्राफिकल मेथड जो है वो लगता है इट्स इजी टू ग्राफ द सिस्टम. व्हाई? बिकॉज नाउ दिस इज द फिजिकल शेप ऑफ द सिस्टम. ठीक है ना, एक प्रॉब्लम था, फिजिकल प्रॉब्लम था और आपने उसकी एक फिजिकल शेप बना दी. सो दिस इज योर प्रॉब्लम लुक्स लाइक. सो हु सेज मैथमेटिक्स इज नॉट आर्टिस्टिक. ठीक है ना, एक शेप आ गई आपके सामने, यू हैव सम कंस्ट्रेंट्स. अच्छा, दिस इज नोन एज सोल्यूशन स्पेस. जो कंस्ट्रेंट्स के दरमियान स्पेस होती है दैट इज नोन एज योर सोल्यूशन स्पेस. ठीक है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इज कि आप इस सोल्यूशन स्पेस में यू आर ट्राइंग टू फाइंड द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन. दिस इज योर एंड ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज हाउ अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एक्चुअली लुक्स लाइक. ठीक है, इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं और कंस्ट्रेंट्स के दरमियान सोल्यूशन स्पेस है. नाउ द सोल्यूशन विल एग्जिस्ट. देखें, ये सारा एरिया इसमें सोल्यूशन हो सकता है, बट दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स 1, 2 एंड 3. Why? Because यहाँ constraints जो हैं they are playing some role in solution. That's why we are trying to find the corner points. Okay? So corner points से हम solution देखेंगे और जितने भी आप optimization techniques देखेंगे या algorithms देखेंगे, they will actually take you from one corner point to an other corner point. अब जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है वो कैसे यूज होती है इसमें? एक्चुअली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन डिसाइड्स कि अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी डायरेक्शन यहाँ से क्या होगी, यू विल गो टू दिस कॉर्नर पॉइंट और टू दिस कॉर्नर पॉइंट. सो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एक्चुअली टेक्स योर इटरेशंस फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाई हम उसको डिटेल में भी देखेंगे कैसे आपने यहाँ से मूव करना है फ्रॉम एंड नाउ फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट वेयर विल यू मूव. सो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन टेक्स यू स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स वन कॉर्नर पॉइंट, देन अनदर कॉर्नर पॉइंट, एंड फिर वहाँ वो सोल्यूशन देती है, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट वहाँ सोल्यूशन देती है और फिर वापस आके अपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर सोल्यूशन देती है, वहाँ से फिर वो ऑप्टिमाइज करती है. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस टेक्निक ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन. इसको नोट कर लें, प्लीज गो थ्रू दिस टेक्निक ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन. इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, उसमें कुछ भी नहीं है. आप वर्कआउट एग्जांपल्स एक दो देख लें, दे आर अवेलेबल इन एवरी मैट्रिक्स बुक और कैलकुलस की किताबों में आपको बहुत मिल जाएगा. हमने पढ़ा हुआ भी है ये इंजीनियरिंग में अपने. सो इसको देख के आइएगा बिकॉज ये फिर फिजिकली हम इससे एक दो एग्जाम्पल्स भी करेंगे. सो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन टेक्निक, इसको नोट आउट कर लें आप. ओके, ओके, ऑलराइट. So, all right. So, can you develop a LP model of this problem? कोशिश करें जरा.
So at a certain refinery, the refining process requires the production of at least 2 gallons of gasoline for each gallon of fuel oil. To meet the anticipated demands of winter, at least 3 million gallons of fuel oil a day will be required to produce. The demand for gasoline, on the other hand, is not more than 6.4 million gallons per day. If gasoline is selling for $1.9 per gallon and fuel oil sells for $1.5 per gallon, how much of each should be produced in order to maximize the revenue? So it is a maximization problem. So it is a revenue maximization problem. Okay, so you have to write the objective function and then the constraints and then the graphical solution and then the equation solution. Okay, so इसको I will go with this at that this example में आपको साथ साथ I will go along और फिर आपको मैं practice question भी दूंगा. Let's see कि कैसे इसको formulate करते हैं so that you have a fair bit of idea. All right. So this is the question. अब production का सवाल है. Okay, ये production का एक real life situation है and it happens. जब आप production की बात करते हो and you are talking about production setup, so ये problem आता है. I was actually consulting Ganj Glass a couple of months back. तो गंज ग्लास वालों से मेरी बात हुई जो ये ग्लास प्रोड्यूस करते हैं. और आपको पता है इसकी फैक्ट्री क्या है गंज ग्लास वालों की? गंज ग्लास वालों की फैक्ट्री. ये ग्लास प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे ग्लास प्रोड्यूसर्स हैं. इट इज़ नियर पेशावर, वो जो पेशावर की जाते हुए रोड है ना, वहाँ इनकी फैक्ट्री है. और इनकी ख़ास बात यह है कि एंटी ग्रेविटी ग्लास बनाते हैं. ये एंटी ग्रेविटी का मतलब है कि वैसे तो ग्लास को फ्लो कराते हैं वो ग्रेविटी के असर में, ये लोग ये कहते हैं कि एंटी ग्रेविटी बनाते हैं. ये पुल करते हैं ग्लास, मॉडर्न ग्लास, और वहाँ वो ग्लास जो है वो क्या कहते हैं बनता है ग्लास, मतलब वो कि वो कंसोलिडेट होता है. सो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी हम वी एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम आवर मेन फ्यूल विच इज़ द CNG टू द कैरोसिन ऑयल जब लाइट लोड शेडिंग होती है ये. सो उनका जो एनर्जी बिल था वो CNG पे दैट इज़ फॉर 5 days दैट इज़ 5 लाख रुपीज़. और जब वो शिफ्ट करते हैं तो फॉर 3 days इट इज़ अगेन 3.5 लाख रुपीज़. सो एनर्जी बिल उनका डबल हो जाता है जब वंस दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम CNG टू द कैरोसिन ऑयल. तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रिफाइंड जो आपका उनका जो फर्नेस होता है उसे बंद क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा जी अगर हम इसको बंद करते हैं तो वी एक्चुअली रिक्वायर अ कंसल्टेंट जो कि आता है और इसको वो दोबारा रीइग्नाइट करेगा एंड इट टेक्स 2 months फॉर दिस. So they cannot afford to close down that furnace. So they have to convert to alternative fuel जब उनका ये गैस की लोड शेडिंग होती है. So वहाँ फिर ये प्रॉब्लम भी इस तरह का मैंने देखा कि नाउ द सेम प्रॉब्लम कि आपने किस तरह उसको ऑप्टिमाइज करना है चीज़ को, बिकॉज उनका बिल तो डबल हो गया हफ्ते में, 8 लाख रुपीज़ पे चला गया. सो दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो कि आपको फैक्ट्री सेटिंग्स में और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में आती हैं. एंड यू कैन यूज लीनियर प्रोग्रामिंग और LP टेक्निक्स टू go for the best solution possible. All right, so let's see how this problem is actually formulated into an LP model. All right, the question जो मैंने इसको अपने लिहाज से लिखा है, the question asks for the number of gallons which should be produced. So I should let my variables stand for gallons produced. So मैंने 2 variables decide किए, okay, x और y. X is the gallons of gasoline produced and y is the gallons of fuel oil produced. As simple as that. Then, since this is a real life problem, जैसे मैं बताया कि real world के साथ इसको आप relate कर सकते हैं. I know that I can't have negative production levels. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी negative चली जाए. So the variables can be negative. This gives me first 2 constraints. These are known as non-negative constraints. ये याद रखिएगा. जब आप once you decide कि आपके design decision variables negative नहीं हो सकते, these are automatically generated constraints. These are known as non-negative constraints. So first of all, I generate non-negative constraints because I know the production cannot be negative. Since I have to have at least 2 gallons of gas for every gallon of oil, वहाँ से मैंने एक constraint अपने develop किया. X is greater than equal to 2y. This is my first constraint. For graphing the, of course, उसको मैं दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ, जिस तरह आप चाहें उसको लिख सकते हैं. उसको मैंने इस तरह लिख दिया या फिर मैं उसको y is less than equal to x/2 भी लिख सकता हूँ. Manageable form मेरे लिए ये थी तो इससे मैंने उसको इस तरह लिख दिया. Then the winter demand says that the gallons of oil, y क्या था? Gallons of oil should be greater than 3 million. ठीक है? Note that this constraint eliminates the need for y is greater than equal to 0. इसका मतलब यह है कि 0 तो नहीं हो सकती, constant. ठीक है?
Alright, the gas demand says that X should be less than equal to 6 and 6.4 million था, ठीक है, तो वहां से दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया. So this is my LP model. Maximize revenues. Revenue कहाँ से बनाया? Because मैंने कहा था कि each gallon of gasoline costs 1.9 and each gallon of oil costs 1.5. वहां से मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया. So R is 1.9x plus 1.5y and subject to these 4 constraints. Okay, so these are the 4 constraints. कौन सा वाला? y is less than equal to 1/2. ये वही चीज़ है जो हमने पहले की थी. ये देखिए x is greater than equal to 2y. उसको मैंने लिखा उस तरह से और कुछ भी नहीं किया. ठीक है. Now I graph this. अब मैं इसे ग्राफिकल सोल्यूशन देता हूँ. So this is the graph. So where is my solution space? That little space on the top right corner. So if I magnify it, it looks like this. Okay, so taking a closer look, I can see the feasibility region a little better. So this is my feasibility region. Okay, so this is my feasibility region. अब मैंने यहाँ feasible solution मालूम करना है. I have 3 constraints. One is x equals 6.4, y equals 3, and the other is y is 1/2x. यहाँ मैंने feasible solution मालूम करना है. So what I'll do is कि मैं corner points पे अपने coordinates को देखूंगा. कैसे देख सकता हूँ? I can solve the 2 equations जैसे कि हम करते रहे. So when you test the corner points, you get the maximum solution for your revenues. So this is the maximum solution for your revenues. X is 6.4 million and y is 3.2 million. So as simple as that. So you found when you check all the corner points, the maximum, whichever corner point gives you the maximum. Why? Because your objective function was a maximization function. अगर यहाँ minimization लिखा होता तो फिर मिनिमम सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन होता. All the 3 corner points. अब देखिए सिचुएशंस क्या हो सकती हैं. आपके पास एक ग्राफिकल मेथड ऐसा भी आ सकता है. उसमें दिस इज वन कंस्ट्रेंट एंड दिस इज सेकंड कंस्ट्रेंट. अब व्हाट इज द सोल्यूशन स्पेस? जी कौन सा? देयर इज नो सोल्यूशन स्पेस. देयर इज नो सोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज there is no solution because this constraint is actually independent. ठीक है ना? अच्छा अब क्या होगा? Either you have to move this constraint towards this one or you have to move this constraint towards this one to make it part of the solution. This is known as post optimal analysis. जब आप constraints को refine करते हो, ठीक है, जब आप कंस्ट्रेंट्स को रिफाइन करने की कोशिश करते हो टू मेक द कंस्ट्रेंट्स पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस. ठीक है, जब आप कंस्ट्रेंट्स को रिफाइन नहीं करते, जब आप कंस्ट्रेंट्स को रिफाइन नहीं करते और आप डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हो, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी एनालिसिस. ओके, जब आप कंस्ट्रेंट्स को रीडिफाइन करते हो, जब आप कंस्ट्रेंट्स को रीडिफाइन करते हो और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन न्यू ऑप्टिमा ढूंढते हो, once you are redefining or readjusting the constraints and trying to find the new optimas, it is known as post optimal analysis. And once you are not redefining the constraints but you are looking for many other situations and scenarios, constraints को नहीं हिलाते आप, लेकिन उसके ऑप्टिमल जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसके राइट या लेफ्ट बहुत सारी चीजों को आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनाते हो या देखना चाहते हो, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी एनालिसिस. ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्ट ऑप्टिमल. लेकिन टोरा आपको सेंसिटिविटी भी दिखाएगा. टोरा आपको सेंसिटिविटी दिखाता है, इटरेशंस कर रहा होता है तो सेंसिटिविटी दिखा रहा होता है साथ साथ. ओके, सो इट वाज एज सिंपल एज दैट. प्रॉब्लम कहाँ आता है? एलपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि जब आप कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर रहे होते हो, लेकिन अगर आपके कंस्ट्रेंट्स सही डिफाइन नहीं होते तो आपका सोल्यूशन सही नहीं आता. सो कंस्ट्रेंट्स को निकालना प्रॉब्लम में से, दैट इज the thing, और physical real life problem में से constraints को निकालना, that is the real thing. Okay, can you do this one? ये एक प्रॉब्लम है, बड़ा सिंपल सा है. Try to do this one. देखें कहाँ तक पहुँचते हैं आप, फिर इसको हम करेंगे. हाँ, इस
इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट था वो कह रहा था कि जो x की वैल्यू है शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 6.4 मिलियन व्हाटएवर। हाँ हाँ ठीक है, x से नीचे आप आ गए। ठीक है। केस में वो सेम ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये किधर है? ये x का तो आ गया लेस देन 6.4। लेस देन 6.4। हाँ। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वहाँ पे ग्रेटर देन होना ही नजर आ रहा है थोड़ा सा मुझे ऐसे। वो ग्राफिकल ग्राफ पे, हाँ उसको आपने 3 पे रखा है। 3 से ऊपर 3 पे ऊपर वाला किया, ऊपर वाला 3 से ऊपर किया, ऊपर क्या किया? क्योंकि उसका ग्रेटर देन था और उसका 6.4 से लेस देन था। ओके सो इसको देखें जरा। कौन सा वाला? टन्स। ये टन्स ऑफ रॉ मटेरियल है। हाँ। प्रॉफिट पर टन जो है दिस इज 5000 एंड 4000। ऐसे ही है, ऐसे। Yeah, the objective function will be the profit maximization function. ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। तो उसका वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। देन लुक आउट फॉर द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। एक कंस्ट्रेंट तो होगा मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी का रॉ मटेरियल M1 के लिए, और एक कंस्ट्रेंट होगा मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी का रॉ मटेरियल M2 के लिए। दोनों के लिए जो है डेली अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखें तो देयर आर 2 more constraints. Market survey indicates that daily demand for interior paint cannot exceed that for exterior paint by more than 1 ton. इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीरियर पेंट है इफ दैट इज X2, ठीक है, और इफ योर एक्सटीरियर पेंट इज X1, दोनों का डिफरेंस 1 टन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ऑल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। सो इंटीरियर पेंट की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 2 टन्स है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि X2 पे भी अगर आप उसे X2 लेते हैं तो उसमें भी कंस्ट्रेंट आ जाएगा। सो लेट्स फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम आउट ऑफ दिस। करते हैं जी। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कौन बताएगा? ओके, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? सो पहली बात तो ये होगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो इट विल बी मैक्सिमाइज profit is equal to 5x1 plus 4x2, where x1 is your exterior paint, and x2 is your interior paint. So now we have 2 decision variables. कौन कौन से हैं? We are defining x1 is your exterior paint and x2 as your interior paint. So these are your decision variables or design variables or whatever. So based upon these design variables आपने profit maximization function लिख दिया। So this is your objective function to maximize profit, which is 5x1 plus 4x2. 1000 को मैं eliminate कर रहा हूँ, it is in thousands. Okay, so this is profit per ton. So you have to maximize your profit. ये बात तो clear हो गई। Now we are coming to the constraints. देखें, एक कंस्ट्रेंट जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं वो कौन से हैं? आई नो कि माय पेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव।
exterior paint and interior paint cannot be negative. So I can easily write x1 greater than equal to 0 and x2 greater than equal to 0. So these are my non-negative constraints. Okay, so we have to specify these. अब ये हमेशा जरूरी नहीं कि x1 x2 हमेशा ही ना हो. For example, if I am talking about another example जिसमें कि x1 can go to negative. For example, temperature है वो negative जा सकता है. So वहाँ फिर मैं इसको हो सकता है एक वेरिएबल को नॉन नेगेटिव ना करूं, दूसरे को कर दूं. So that depends upon the conditions or depend upon the decision variables or the physicality of decision variables कि आपने उसको नॉन नेगेटिव करना है या नहीं करना. So my non negative constraints are done. So non negative constraints are done. First step is gone. Now let's see कि प्रॉब्लम में हमें और क्या कंस्ट्रेंट है. पहला कंस्ट्रेंट हमारा M1 का है, रॉ मटेरियल M1 का. रॉ मटेरियल M1 ये कंस्ट्रेंट है, दैट इज द अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट, वो जो टेबल में गिवन है. सो वहां के गिवन है एक्सटीरियर पेंट एंड इंटीरियर पेंट और मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है 24 टन है. सो वी कैन राइट 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24 बिकॉज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी 24 टन है. और आपके पास जो टन ऑफ रॉ मटेरियल पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट कितना है 6 और 6 टन है और इंटीरियर पेंट कितना है 4 टन है. सो यहां से यू कैन इजीली राइट कि आपके पास डेली अवेलेबिलिटी के लिहाज से रॉ मटेरियल M1 पे द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज द डेली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल M1. सो 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24. इसी तरह आपके पास रॉ मटेरियल M2 का कंस्ट्रेंट होगा मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी के लिए. वो क्या होगा x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6. ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हो गए अवेलेबिलिटी के लिहाज से. नाउ अगर हम नीचे आते हैं तो कहता है जी कि अ मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन. सो इट मींस दैट x2 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 1 एक्सीड नहीं कर सकती है. दोनों का डिफरेंस 1 टन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. और इन अदर वर्ड्स फॉर सिमेट्री मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1. एक ही बात है. ठीक है, उसके बाद आखिरी चीज क्या कहता है वो ऑल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन. सो इंटीरियर पेंट पे वो एक लिमिटेशन लगा रहा है दैट इज x2 लेस देन इक्वल टू 2 के जो मैक्सिमम डेली डिमांड है इंटीरियर पेंट की वो 2 टन है. सो नाउ दिस इज योर टोटल मैथमेटिकल मॉडल. दिस वन, this is a mathematical model. So now we have transformed this physical condition into a mathematical model जिसमें you have your objective function and you have your set of constraints in which you have first of all a non-negative constraint and then the physical constraints. So this is a constraint for M1 raw material M1. This is a constraint for M2 raw material M2. This is the availability constraint and this is again a constraint on M2. Alright, so this is the whole mathematical model. Alright, now let's see कि हम इसको कैसे solve करते हैं. Of course you can solve it by graphically. Graphical method में आप let's solve it first of all graphically. तो इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इसके. Okay, can you solve it graphically? कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं. करें ना इसको जरा. Let's see how you solve it graphically. इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए. ऐसा ही है यकीनन. ओके, सो इसको बारी बारी देखते हैं फिर इसका ग्राफ बनाते हैं. ओके, यू हैव डिसीजन वेरिएबल्स. वही हमने डिफाइन किया था x1 इज टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट एंड x2 इज टर्म्स ऑफ इंटीरियर पेंट्स. हमने डिसीजन वेरिएबल्स डिजाइन वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन टोटल प्रॉफिट और उसको हमने मिला के भी कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, तो मैक्सिमाइज z या मैंने p कहा था 5x1 प्लस 4x2. ये वही तफसील है सारी कि हाउ यू एक्चुअली डेवलप. सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट, नाउ वी कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रेंट्स that restrict raw material usage and product demand. The new material restrictions are expressed verbally as. So you आप अपनी आसानी के लिए इसको verbal expression में डालें और फिर उसको equation कर दें. हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया था. So we have the first constraint that is 6x1 plus 4x2 less than equal to 24. Okay, तो वो आपका raw material M1 का constraint आ गया. फिर you have another constraint x1 plus 2x2 less than equal to 6, वो M2 के लिए आ गया. फिर उसने बात की जनाब वही वाली जो हमने की मार्केट लिमिट की, तो उसको उसने एक्सप्रेस कर दिया और आखिर में डिमांड लिमिट की. सो दिस इज योर टोटल एलपी मॉडल. मैक्सिमाइज
द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आपको सोल्यूशन स्पेस समझ में आ जाएगी, और सोल्यूशन स्पेस में फिर आप देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स में विच इज द मैक्सिमम सोल्यूशन। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड तो आई होप कि आसान होगा, वो आप कर लेंगे, मैं खाली उसके डिटेल में मैं ना जाऊँ, या इफ यू वांट मी टू गो टू डिटेल आई कैन ड्रॉ ग्राफ, इट्स अप टू यू। करा दें? अच्छा, चलिए कोऑर्डिनेट्स बताएं फिर। कोऑर्डिनेट्स बताएं जी। फर्स्ट का 4 एंड, और दूसरा नहीं 6 एंड, सेकेंड -1 एंड सेकेंड 0 एंड थर्ड हो गए। फर्स्ट वन इज 4 एंड 6 और -1, अच्छा 1, ठीक है, -1 0 और फिर 0 और 1, ये कह रहे हो आप? ओके, लेट्स ड्रॉ इट, ड्रॉ करते हैं सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x2 is equal to 6, x1 is equal to 0, so 0 and 6, और x2 is equal to 0, x1 is equal to 4, so 4 and 0, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 0 and 6 x, so x1 0, x2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 point, and 4 and 0, 1 2 3 4. This is your first line, this is your first line, this is what, this is 6x1 plus 4x2 24, ठीक है। second line x1 is equal to 0, x2 is equal to 3, and x2 is equal to 0, x1 is equal to 6, so 6 0, so 0 3 6 0, 0 3 1 2 3, and 6 0, 1 2 3 4 5 6 6 0, so this one is x1 plus 2x2 less than equal to 6. Third one, x2 is equal to 0, x1 is -1, so -1 0, and x1 is 0, x2 is 1, so 0 1, so -1 0, -1 over here 0, and 0 1, x2 is x 0 1, so this is your line. Okay, last one, x2 is equal to 2, x2 is equal to 2 over here, and x2, that's all, x2 is equal to 2, so like this. Okay, so this is your solution space. तो आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और A, B and C, ठीक है। आपने क्या करना है, अब अगर आपने कॉर्नर पॉइंट A को चेक करना है, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द आंसर एंड पुट इट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको चेक करना है, अगेन सॉल्व द इक्वेशंस जो कि बना रही है कॉर्नर पॉइंट एंड पुट इट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह ये आउट हो जाएगा बिकॉज इसमें एक तो जीरो है। सो आपने देखना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे यू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज हाउ इट इज सॉल्व ग्राफिकली। How in this case is this area the
क्या मतलब सर? One line is not ये जो x6x1 plus 4x2 less than equals to 24 है, you are below this line. उससे नीचे है ना? हाँ, Similarly for 6 line again you go below that. below that. Then for 1 you go below that. And for 2 you go below that. So this is उसके नीचे आ रहे हैं ना वो which is in fact overlapped by all these. इफेक्ट हो गया। not necessarily that the solution area should be actually touching the some line. नहीं वो टच करेगा। It should be below that. हाँ, it should be It should fulfill the condition. बिल्कुल बिल्कुल। In fact this is the area which is fulfilling all these conditions. This is the solution space which is क्योंकि सर- satisfied by the first, by the second, by the third, by the अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंस्ट्रेंट का ना x2 का ये ग्रेटर देन 2 हो जाता ना, तो फिर इसका मतलब था इससे ऊपर, फिर अब उस एरिया को भी देखते, उसमें भी कॉर्नर पॉइंट ढूंढते आप। फॉर एग्जाम्पल ये फिर ये भी इनटू प्ले आ जाता, ठीक है ना? तो दैट डिपेंड्स कि आपका एरिया जो है वो कहाँ जो है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स आप किस एरिया की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो, ठीक है? और वहां से फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स के जरिए यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है? सो हाँ, वो आपका आंसर है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें फ्लॉ क्या है, इस ग्राफिकल मेथड में फ्लॉ क्या है? एक बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहे हैं इसमें। वो ये है कि जब हम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली चेंजिंग द लेस देन इक्वल टू साइन विद इक्वालिटी विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। असल में तो ये होना चाहिए था ना, आप ऐड करोगे तो फिर लेस देन इक्वल टू को आप इक्वालिटी में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते आप। तो फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वालिटी में चेंज करके कर रहे हैं, ठीक है? सो जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है वो असल में इसको इस तरह हल नहीं करता जैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन करता है। वो आपको एक चीज बताता है विच आर नोन एज स्लैक वेरिएबल्स। जब भी आप कन्वर्ट करते हो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तो वो आपको यहाँ एक चीज ऐड कराते हैं विच आर नोन एज स्लैक वेरिएबल्स। सो जब आप सिंप्लेक्स मेथड की तरफ बात करते हो, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स सिंप्लेक्स मेथड, तो सिंप्लेक्स मेथड में आप बात करते हो तो सिंप्लेक्स मेथड में आपका जो एलपी मॉडल है टोटली थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। वो कैसे बनता है? योर सिंप्लेक्स मेथड एलपी मॉडल लुक्स लाइक दिस। सिंप्लेक्स मेथड में आप इसको कंस्ट्रेंट्स को इस तरह डिफाइन करते हो, 6x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 24, x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 6, माइनस x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 1, x2 प्लस s4 इज इक्वल टू 2. So now you have added some variables. These variables are known as slack variables. ये सारे ये slack variables हैं, slack variables. So you have added those slack variables to convert inequalities into equalities. अब मैं सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? So इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी चेंज होता है। वो कैसे बन जाएगा? वो बन जाएगा, अब जहाँ z है तो that will be z is equal to 5x1 okay plus 4x2 plus s1 plus s2, 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4. So now this is the simplex method or simplex method LP formulation. So this is the problem or this is the mathematical model for simplex method. Simplex method. अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि once I will solve this, तो I will exactly know कि slack कहाँ है. अब there is zero slack. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं स्लैक नहीं मिलता मुझे, ठीक है ना, अब इसका एक इससे क्या जनरेट होता है? ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. इससे से जनरेट होता है विच इज नोन एज सिंप्लेक्स टैब्लो. इससे सिंप्लेक्स टैब्लो जनरेट करते हैं आप, एंड दैट सिंप्लेक्स टैब्लो इज एक्चुअली फेड इनटू द प्रोग्राम और इनटू द सॉफ्टवेयर. और इसको और उस पे अब जब सिंप्लेक्स टैब्लो जनरेट होता है तो देन यू एक्चुअली परफॉर्म द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ऑन दैट सिंप्लेक्स टैब्लो. तो आपने गॉस जॉर्डन लगाना है वो सिंप्लेक्स मेथड में आप इस सिंप्लेक्स टैब्लो पे लगाते हो और वहां से आप इसको सॉल्व करते हो. तो जो सॉफ्टवेयर है टोरा उसमें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसमें उसका एल्गोरिथम बना हुआ है. सो यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल.
कॉस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आप एक पिवटल रो होती है, एक पिवटल कॉलम होता है, और उस पिवटल रो और पिवटल कॉलम के इंटरसेक्शन में जो वेरिएबल रखा होता है उसको आप एलिमिनेट करते हो, फिर देन देयर इज एन एंटरिंग वेरिएबल, देन देयर इज अ लीविंग वेरिएबल. इट्स अ कंप्लीट मेथड, इट्स अ कंप्लीट टोटल मेथड जो कि किया जाता है. तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि इसको आपने सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे कर लेना है. सो दिस इज द सिंपलेक्स टैब्लियो फॉर द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. वी वांट अ ब्रेक ऑफ असर. How do you solve these equations with the snack variables? वो सर that is where the software comes in, ना. Software solves it for you. Okay, then you will utilize the software for solving it. आप